Jai Hind students, welcome to Anjana's class. Students, today we will read the second and concluding part of the story, The Last Lesson. The Last Lesson is written by a French writer, Alphonso Daudet. Alphonso Daudet was a French novelist and a short story writer. The Last Lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Students, the main characters of this story are a teacher, Mr. Hamel, and a student called Franz. Students, ये स्टोरी डील करती है एक हारते हुए देश के लोगों पर क्या असर पड़ता है जब उनसे उनकी मातृभाषा को छीन लिया जाता है। और उसी समय उनका टीचर है मिस्टर हैमिल, वो एक लास्ट लेसन देते हैं जो कुछ टॉपिक्स पर वो डिस्कस करते हैं और बच्चों से बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं इस स्टोरी का सेकंड और कंक्लूडिंग पार्ट, एंड द स्टोरी इज़ द लास्ट लेसन। अभी तक इस स्टोरी में हम पढ़ चुके थे कि एक छोटा सा बच्चा फ्रेंड्स वो काफ़ी लेट स्कूल पहुंचता है और क्लास में पहुंचता है, जैसा कि उसको उम्मीद होती है कि उसको डांट पड़ेगी या उसको पैनलाइज किया जाएगा, लेकिन उनका टीचर उससे कुछ भी नहीं कहता है। अब आगे क्या होता है हम पढ़ते हैं। पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. ये जो लेसन है, लास्ट लेसन, वो फ्रेंड्स कहता है कि अब मैं समझ गया था कि उन्होंने संडे को पहने जाने वाले अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं, और ये भी मैं समझ गया था कि जो गांव के लोग हैं वो उस रूम में पीछे क्यों बैठे हुए थे। ऐसा इसलिए था कि वो काफ़ी दुखी थे कि वो उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई क्यों नहीं की। ये उनका अपने टीचर के लिए, जिसने 40 वर्षों तक स्कूल में पढ़ाया, उसके प्रति एक उनका सम्मान देने का तरीका था। Students, while I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. फ्रेंड्स कहता है कि जब मैं ये सब सोच ही रहा था तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया और अब मेरा टर्न था बोलने का, और मुझे पार्टिसिपल के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मुझे पार्टिसिपल्स के रूल को काफ़ी तेज़ी से और साफ साफ बगैर किसी गलती के बोलना था, लेकिन मैं शुरू में ही हड़बड़ा गया। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, मैं शुरुआत में ही हड़बड़ा गया, एंड स्टूड देयर, खड़ा रह गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे साहस नहीं था कि मैं ऊपर देखूं। I heard Mr. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Alsek. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be the Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little French. We'll have a great deal to reproach ourselves with. Students, Mr. Hamel कहते हैं फ्रांस से, I won't scold you. मैं तुमको नहीं डांटूंगा. Little friends, you must feel bad enough.
See how it is. Every day we have said to ourselves, I have plenty of time. रोज़ाना तो हम ये सोचते थे और ये कहते थे पढ़ते समय, हमारे पास बहुत समय है. I'll learn it tomorrow, और मैं इसको कल याद कर लूँगा. And now you see where we have come. और अब देखो हम कहाँ पहुँच गए. यानी एम हैमिल हैं, वो ये बता रहे हैं, ये जताना चाह रहे हैं कि ये उनका लास्ट लेसन है. और रोज़ाना बच्चे और टीचर दोनों ये सोचते थे कि अभी बहुत समय है, वो पढ़ लेंगे, लेकिन अब वो लास्ट लेसन आ गया. That's the great trouble with Alsic. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be a Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. यहाँ पर एम हैमिल अपनी मातृभाषा के बारे में बात करते हैं. वो कहते हैं कि कल आपसे जब आपके साथ के लोग और जो यहाँ बैठे हैं कि तुम कैसे फ्रांसीसी व्यक्ति हो जो ना तो अपनी भाषा बोल सकता है ना ही लिख सकता है. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच. लेकिन तुम ही नहीं हो जो गलत है. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आरसेल्फ विद. और हम सब एक दूसरे को इस तरह से दोषारोपण करते हैं. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? इस समय टीचर जो एम हैमिल हैं वो ये कहते हैं कि फ्रेंड्स, तुमको फ्रेंच नहीं आती है या तुम बोलना नहीं सीख पाए या लिखना नहीं सीख पाए, इसमें दोष केवल तुम्हारा नहीं है. योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न. आपके माता पिता भी उतने ज़्यादा जागरूक नहीं थे या चिंतित नहीं थे कि तुम सीख सको. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स. उन्होंने भी तुम्हें खेत पर काम करने के लिए भेजा, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा सको. एंड उसके बाद एम हैमिल कहते हैं और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, इसमें मेरी गलती भी है. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. क्या मैंने तुम्हें अपने पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा बजाय इसके कि तुम पढ़ते. एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. और जब मुझे मछली पकड़ने जाना था तब क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी. तो इस तरह से स्टूडेंट्स, एम हैमिल जो कि टीचर हैं, वो ये बताते हैं कि जो लर्निंग होती है, सीखना होता है, वो केवल स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी नहीं होती है, उसमें टीचर और पेरेंट्स का भी योगदान होता है. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. Students, इसके बाद एम हैमिल उनसे बात करते हैं. Then from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language. इसके बाद मिस्टर हैमिल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते गए, सेइंग, ये कहते हुए that it was the most beautiful language in the world. ये संसार की सबसे खूबसूरत भाषा है. स्टूडेंट्स, जिस देश में हम रहते हैं और जिस भाषा को बोलते हैं उसके प्रति हम इतना ही सम्मान प्रकट करते हैं कि हम जो भाषा बोलते हैं वह सबसे सुंदर, खूबसूरत है. The clearest, the most logical, that we must guard it among us. वो इतनी साफ़ है और इतनी तार्किक है कि हमें इसकी हमेशा रक्षा करनी है. Never forget it, इसको नहीं भूलना है. Because when a people are enslaved, क्योंकि जब लोग दास्ता में ग्रसित हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो वो उनकी भाषा को जितना वो पकड़ के रखते हैं, तो उनके
जेल से बाहर आने की चाबी की ही तरह ही उनकी ये भाषा होती है। Then he opened a grammar and read us our lesson. इसके बाद उन्होंने ग्रामर की किताब निकाली और हमारे लिए एक पाठ पढ़कर सुनाया। I was amazed, मैं चकित था to see how well I understood. और आज मुझे लगा कि मुझे ये पाठ कितने अच्छे से समझ में आ गया। स्टूडेंट, इस लेसन में, इस पार्ट में मिस्टर हैमिल राष्ट्रीयता की, नेशनलिज्म की बात करते हैं और राष्ट्रभाषा की बात करते हैं। चूँकि वो फ्रांस में थे और अभी तक जिस जगह पे वो रह रहे थे वो फ्रांस का हिस्सा था, वो फ्रांसीसी भाषा सिखाते थे बच्चों को, और आज उनका लास्ट लेसन था, तो वो अपने बारे में ये बात करते हैं। All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully, that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, Hamel had a new copies for us, written in a beautiful round hand, France Alsec, France Alsec. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. उन्होंने जो कुछ भी किया, ऑल ही सेड सीम सो ईजी, वो जो भी बात कर रहे थे वो इतनी आसान थी। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने भी ऐसे सोचा कि कभी इससे पहले मैंने उनको इतने ध्यान से नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और इतनी धैर्य के साथ उन्होंने किसी भी चीज़ को नहीं समझाया था। इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लगता था कि वो सब कुछ हमको दे के जाना चाहते थे जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एज वन स्ट्रोक, और एक बार में ही हमारे अंदर वो सब चीज़ें डालना चाहते थे। ग्रामर के बाद हमने लिखने की कला सीखी। उस दिन, दैट डे, मिस्टर एम हैमिल हैड अ न्यू कॉपीज़। उस दिन एम हैमिल हमारे लिए नई कॉपी लेके आए जिसमें खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा था फ्रांस एल्सिक। एल्सिक उस ज़िले का नाम था और कंट्री था फ्रांस। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स, ये जो दोनों शब्द थे फ्रांस और एल्सिक, ऐसे लग रहे थे कि छोटे छोटे झंडे हैं जो कि हर जगह स्कूल में के कमरे में तैर रहे हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारी डेस्क के ऊपर एक डंडे से लटके हुए हैं। स्टूडेंट्स, इस समय चूँकि ये लास्ट लेसन था और अब उनसे एम हैमिल विदा लेने वाले थे बच्चों से, तो फ्रांस कहता है कि उन्होंने हमको कॉपी दी और कॉपी पे बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा था फ्रांस और एल्सिक। द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी हु वाज अ स्मॉल बॉय नेम फ्रांस, वो कहता है, यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fishhooks, as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? ये बड़ा मार्मिक मोड़ है स्टोरी का, जहाँ पर फ्रेंड्स को भी, जो छोटा सा बच्चा था उसको ये पता लग जाता है कि ये उसका लास्ट डे है। तो वो बताता है कि कमरा, ये जो स्कूल रूम था, बिल्कुल शांत था। केवल यहाँ पर पेपर पर पेन के चलने की आवाज़ आ रही थी। कभी कभी भौरे भी उड़ के जाते, लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता। बच्चों की आदत होती है कि वो पढ़ाई के अलावा रूम में जो भी एक्टिविटी होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ये लास्ट लेसन था एम हैमिल का। बच्चे इतने ज़्यादा गंभीर थे और उनको कमरे में गूंजते हुए भौरों की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी, और ऐसा उनको लगा एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और जो छत पे थे, पुराने स्कूल के कमरों की छत पर जो कबूतर थे वो भी धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा, अपने आप ही सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन,
यहाँ पर दे जो वर्ड है ये जर्मन सोल्जर्स के लिए है, प्रशियन आर्मी के लिए है। तो वो बच्चा कहता है कि क्या जर्मन सैनिक हैं या जर्मनी है वो क्या कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखाएगा, इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि वो कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखाएगा। वो जो फ्रांस है वो कहता है कि वो हमें भी जर्मन भाषा सिखाएगी, तो क्या इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखाएगी। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Whenever I looked up from my writing, I saw, लिखते लिखते जब मैंने सामने देखा, फ्रेंड्स कहता है, जब लिखते लिखते मैंने सामने देखा, एम हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, चेयर में बिल्कुल निश्चेत एम हैमिल बैठे हुए थे, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, कभी वो किसी एक को देखते कभी दूसरे की तरफ, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, मानो वो अपनी निगाहों में या अपनी आंखों में इस दृश्य को भर लेना चाहते थे जो कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में दिख रहा था। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 वर्षों से वो उसी एक जगह थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड, उनका बगीचा बाहर था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी क्लास। His sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. उनकी बहन जो कि कमरे में घूम रही थी, अपना सामान बॉक्सेस में रख रही थी, क्योंकि उनको दूसरे दिन वह देश छोड़ना था। Just like that, the desks and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows of the roof. इस समय उनके आसपास की चीज़ों से परिचय कराता है फ्रेंड, कि जैसे कि वहाँ पर डेस्क और बेंचेस थी जो कि पुरानी घिस चुकी थी, और अखरोट के पेड़ बगीचे में बड़े हो चुके थे, और हॉपवाइन एक बेल थी जो उन्होंने खुद ने लगाई थी, वो छत के और खिड़कियों तक पहुंच चुकी थी। ये जो चीज़ें बता रहे हैं कि अखरोट के पेड़ का लंबा होना, बेंचेस का और डेस्क वगैरह का चिकना हो जाना, घिस जाना, ये बताता है कि वो कितने वर्षों से उस देश में थे। वो खुद बताते हैं कि वो 40 वर्षों से उस देश में थे। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. उनका दिल कितना टूटा होगा ये सुनकर कि उनकी बहन कमरे में घूम रही है और सामान बॉक्स में रख रही है, क्योंकि उनको दूसरे दिन ही देश छोड़ के जाना है। But he had the courage to hear every lesson to the very fast. Every lesson to the very fast. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their baby woo woo. Down there at the back of the room, old Hosser had put on his spectacles and, holding his primer in his both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. वो बच्चा फ्रेंड्स फिर कहता है, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फर्स्ट. अब उसमें पूरा साहस था उस पाठ को सीखने का. आफ्टर राइटिंग वी हैड अ लेसन हिस्ट्री. लिखने के बाद हमारा अगला लेसन था इतिहास का. एंड द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी बू. और डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स. कमरे में सबसे पीछे वृद्ध हॉसर ने अपने चश्मा लगा रखा था. होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स. दोनों हाथों में उसने किताब पकड़ रखी थी. स्पेल्ड द लेटर्स विद देम. और उन बच्चों के साथ वो वही अक्षरों को बोल रहा था.
हाउ यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और आप ये देख सकते हो कि वो रो भी रहा था. हिज वॉइस ट्रैम्बल्ड, उसकी आवाज़ काँप रही थी विद इमोशंस, भावनाओं से. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. ये सब उसको सुनना इतना मज़ेदार था कि हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी. हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे पूरा याद है दैट द लास्ट लेसन, वो आखिरी पार्ट. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. अचानक से चर्च की घंटी ने 12 बजाए. देन द एंग्लियर्स, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रेशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़. उसी समय प्रेशियन यानी जर्मन सैनिकों के बिगुल की या ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनाई दी कि वो अभ्यास से लौट रहे थे, और हमारी खिड़की में से वो आवाज़ हमको सुनाई दी. मिस्टर हैमिल स्टूड अप. मिस्टर हैमिल खड़े हो गए, वेरी पेल, काफ़ी थके हुए थे, कमज़ोर थे. इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से मिस्टर हैमिल खड़े हुए. वो काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. मैंने उनको इतना लंबा कभी भी नहीं देखा था. यहाँ पे लेखक ये बताना चाहता है वो बच्चा कि लंबा यानी मेरे मन में उनके प्रति इतना आदर और पहले कभी नहीं था. माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम. मेरे दोस्तों, लेकिन ऐसा कहते कहते उनका गला भर आया. ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े. टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया. एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और पूरी शक्ति से आगे बढ़े. ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा. वी ला फ्रांस. बच्चों, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है कि फ्रांस अमर रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. इसके बाद रुक गए और उन्होंने अपना सिर दीवार पर झुका लिया. एंड विदाउट अ वर्ड, बगैर किसी शब्द बोले, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड. उन्होंने अपने हाथ से एक मुद्रा बनाई. स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. आज से स्कूल ख़त्म हुआ, आप जा सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है और काफ़ी सैड है कि किस तरह से एक देश से एक हिस्सा शत्रु देश के पास चला जाता है और वहाँ के बच्चों और टीचर और वहाँ की जनता पर इसका क्या असर पड़ता है जब वो ये जानते हैं कि कल से उनकी मातृभाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा, अब उनको दूसरी भाषा सीखनी पड़ेगी. तो उनके मनोदशा क्या होती है, ये स्टोरी में समझाया गया है. और ये स्टोरी एक टीचर और बच्चे के बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसको भी बताया है. So students, the first lesson of your book Flamingo is the last lesson, and this last lesson is written by Alfonso Dode, and I hope that you loved and liked this story. Thank you very much.